Well, in fact, Richard, 7 o'clock this morning, Kyiv, certainly, I would say, a little calmer than what we witnessed yesterday, because yesterday we had, in fact, we woke up to sounds of explosions around 4 o'clock in the morning, but this time it was a little different. Our experience, let me just recount our experience over the last 7 to 8 hours, starting from 9 o'clock last night when Republic Media crew had to actually stay inside a shelter because there were multiple siren alerts, the air raid alerts that were basically taking place, and that is the reason why what was essentially happening is that we were being asked to go to the shelter, which is pretty much same for almost everyone who is here in Kyiv, be it the locals or for that matter several other foreign nationals who are yet to be evacuated. In fact, in the shelter that we were yesterday, we came across foreign nationals, some people who have been stranded, people from Bulgaria, and also United Nations had several of their employees who were here in the same very shelter that we were in. Now that was pretty frequent. Through the night we had multiple such siren alerts, and that's the reason why we had to be in the shelter. Let's now quickly take our viewers through the other parts of Ukraine, what's really happening. Now, the reports that we've been able to gather over the last 1 hour is that in the suburban areas of Kyiv, there has been a fierce gun battle between the Russian troops and the Ukrainian army. Vasulkov, that's one particular area in Kyiv, a suburban area where there was intense gun battle that took place between both the sides. The Ukrainian army at this point in time is essentially claiming that there hasn't they have been able to stop the Russian troops from coming inside Kyiv at this stage. And also there have been some areas where near the airfields where reports have come in of the Russian troops being airdropped. That's the condition as far as Vasulkov is concerned. There have been multiple images that we've also received. We'll try and send it across to our newsroom so that we can play that out for everyone. And apart from that, the other areas, Kharkiv is still, one would say, one has been completely, many would say the Russian troops have managed to really capture that, but Ukraine at this point in time maintains that no major city in Ukraine has been taken over by the Russian army. Let me also bring in my colleague Mridul. जो अपडेट अब तक आ रही है कि कोई भी ऐसे मेजर सिटी नहीं है यूक्रेन की जो रशियन रूस की आर्मी के हाथ में। ये दावा यूक्रेनियन आर्मी ने इस वक्त किया है। हमारे दर्शकों को ये बताते कि कल रात से लेकर अब तक जो अपडेट्स हमारे पास आए हैं, और एक तरफ से एक ही चीज़ कहना बहुत ज़रूरी होगा कि 2 दिन से जो लगातार एक्सप्लोजन्स की बात कर रहे थे, आज एटलीस्ट जहाँ पे हम हैं, लेट मी ऑल्सो ये भी बताना चाहूँगा कि हम जहाँ पे हैं सेंट्रल कीव में, वहाँ पे सुनाई नहीं दी, बट हो सकता है कि कुछ और इलाकों में होगा। उसके लिए हम लोग थोड़े समय के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुछ लोगों से बात करनी पड़ेगी और वो पता करने की पड़ेगी कि कौन से ऐसे इलाके हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उस इलाके में हम जाएं और ये पता करें ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि कल हम लोग पहले ऐसे चैनल थे जो अलेक्जेंड्रा जैसे इलाके में जाके हम लोग पहुंचे और वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरह से मिसाइल अटैक्स हुए हैं, सिविलियन एरियाज को टारगेट किया गया। बिल्कुल, और अभी की जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, मैं सबसे पहले बता दूं कि रात में बम धमाकों की आवाज़ तो नहीं सुनाई दी, लेकिन हाँ डर और खौफ का माहौल था। जैसा हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि कई लोग बंकर में जाकर छिपे हुए हैं, और आसपास शवन जो हमने सुबह पूरी जानकारी जुटाई है उसमें आसपास कई ऐसे इलाके हैं जो कीव से थोड़ी दूरी पर स्थित हैं, वहां पर बम धमाकों की कोशिश की गई है। मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये मॉल वगैरह सब कुछ बंद है, यहाँ पर पूरा सब कुछ थम गया है। लोग बंकरों में जाकर छिप गए हैं। जहां चहल पहल हुआ करती थी वहां कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। और जो इलाकों की बात की जा रही थी, जैसा आपने कहा कि हम भी कोशिश करेंगे उन इलाकों में जाने की, तो वो इलाके यहाँ से करीब 40 से 50 मिनट की दूरी पर हैं या 30 मिनट की दूरी पर हैं। वहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं वो ये भी बताने की कोशिश कर रही हैं कि प्रेसिडेंट का जो घर है वहां पर रशियन आर्मी बढ़ेगी, तो हो सकता है कि नॉर्थ और वेस्ट के इलाके से जब रशियन आर्मी बढ़े तो बीच में यानी सेंटर ऑफ कीव में इस समय हम मौजूद हैं। चारों तरफ से घेरकर प्रेसिडेंट के हाउस में जाकर जेलेंस्की जिस तरीके के वीडियो जारी कर रहे हैं, उनको यहां पर हटाने की पूरी कोशिश आज हो सकती है।
ये भी कहना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से एक रूस की मीडिया प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। कल दोपहर को जो एक प्रोपेगेंडा चली थी कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने वो बंकर में जाके छुप चुके थे, साफ तरीके से पता चलता है कि एक तरह से वो प्रोपेगेंडा था, क्योंकि कल शाम को देर शाम को जो एक वीडियो उन्होंने रिलीज़ किया, उस वीडियो में उन्होंने साफ तरीके से कहा कि वो यहीं पे है, कीव में ही है, और उनके साथ जो उस वीडियो में कई सारे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, और उनका ये कहना था कि वो डिफेंड करेंगे जब तक वो कर पाए। और साथ ही साथ एक जो ऑफर उनको मिला था यूएस के तौर से, यूएस ने कहा कि अगर वो चाहे तो उन्हें इवैक्यूएट किया जाएगा, उन्हें सेफ लोकेशन पे लेके जाएंगे, यूएस का ये कहना था। पर ये जो ऑफर उनको दिया गया है, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया है। उनका ये कहना है कि वो लड़ेंगे, यूक्रेनियंस के लिए लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत ज़रूरी है कि अगर रूस की आर्मी वो सोच रहे थे कि बहुत जल्द वो अंदर घुस जाएंगे और जितने भी यूक्रेनियन शहर है उस पर धावा बोलेंगे, वो नहीं लग रहा है इस वक्त। एक तरह से कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। महत्वपूर्ण है शवन, हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन कौन से देश हैं और किसने क्या कहा है। यूक्रेन में इन्वेजन को लेकर अर्जेंटीना ने इसकी निंदा की है। इसके बाद अगर हम तमाम कंट्रीज देखें, कई जगह सोल्जर्स मारे गए हैं, कई जगह महिलाओं के मारे जाने की खबर है। तो हर कंट्री जो है अपने हिसाब से इसकी निंदा कर रही है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पहले यूक्रेन के साथ थे और फिर बाद में उनका रुख बदल गया। इसको लेकर भी जेलेंस्की ने नाराजगी कल जाहिर की थी। तो उम्मीद ये की जा सकती है देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से कई सारे ऐसे देश हैं जो यूक्रेन के साथ था, उनका ये कहना, यूक्रेनियंस का ये कहना है कि बातों से तो वो ज़रूर यूक्रेन के साथ है, आखिरकार कर्मों से वो उनके साथ है कि नहीं, वो एक बड़ा सवाल उठता है। उसके पीछे कारण ये है, देखिए अभी जो लेटेस्ट खबर ये आई थी कि कल देर शाम को पोलैंड ने एक पूरे एम्यूनेशन का ट्रक भेजा हुआ था। वो पोलैंड के बॉर्डर से यूक्रेनियन साइड में पहुंची थी और उसका काफ़ी यूक्रेनियंस ने इसका स्वागत किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त सिर्फ बातों से नहीं, जो यूक्रेन को इस वक्त चाहिए वो है मिलिट्री सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। पर ये कहना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अभी ये तीसरा दिन है, युद्ध का तीसरा दिन है अगर देखा जाए उस तरीके से कि पहले दिन जो ऐलान किया गया था, तीसरे दिन तक एक छोटी सी आर्मी अगर आप रूस के आर्मी के साथ करें तो कहीं ना कहीं वो कोशिश तो ये ज़रूर कर रहे हैं कि रूस अंदर ना आए। कल इसी हाईवे के ऊपर हमने कई सारे इंटीग्रेटेड कॉम्बैट व्हीकल्स देखे, जो छोटे तरीके के एक टैंक है, वो टैंक्स रास्ते पर दिख रहे थे। और हमें जो कल शाम को जब हम एक यहीं से कुछ ही दूरी पर एक सेंट्रल मॉल से जहां से हम जो तस्वीरें भेजने की कोशिश कर रहे थे, उस तस्वीरें में साफ दिख रहा था कि जो नॉर्दर्न इलाका है, ओब्लानोव का जो इलाका है, उस इलाके में घमासान हो रहा था। और साथ ही साथ हमने देखा कि दूसरे इलाकों में जो सदर्न साइड से भी कीव के अंदर जाने की जो कोशिश रूस की आर्मी कर रही थी। पर आज सुबह तक जहां तक हमें पता है, मैं वापस अपने दर्शकों को कहूंगा क्योंकि सायरन की खबर मिल रही है, सायरन कई इलाकों में बज रहा है, कई सारे के अगर मृदुल आप जो हम आज सुबह जो अपडेट हमने भेजा था, वो अपडेट की थोड़ी डिटेल्स अगर आप बता दें, और उसके बाद हम प्रोड्यूसर्स को ये भी कहेंगे कि जो बाकी चीज़ें वो ज़रूर करेंगे। पहले हम लोग ये अपडेट पहले दे देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहला अपडेट ये है कि एयर अलार्म जो है वो लगातार बज रहे हैं। लस्क का क्षेत्र है, वहां पर भी एयर अलार्म बजने शुरू हो गए हैं। और लगातार ये यूक्रेनियन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो रशिया के हाथ में है। रशिया उधर दावे करता है, यूक्रेन इधर नकार रहा है उन चीजों को। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मिल रही है, जो अपडेट